So far, we have done meaning of foreign exchange rate. We have done systems of foreign exchange rate, where we have studied two systems of foreign exchange rate: fixed exchange rate system and flexible exchange rate system. We have done that fixed exchange rate system. Under this system, exchange rate is decided by the government. So how is flexible exchange rate system determined? We'll do this today. The topic we are going to do today is determination of flexible exchange rate. It is determined by demand and supply of foreign exchange. ठीक है, how is flexible exchange rate determined? It is determined by the demand and supply forces of the foreign exchange. Now let's move on. Why is foreign exchange demanded? Why is it demanded? For what reasons foreign exchange is demanded? Why is dollar demanded? Why is pound demanded? Okay, why is yen demanded in India? Number one, the first reason for demand of foreign exchange is payment of international loans. When your home country has to pay international loans, it requires foreign currency. Okay, foreign international loans are paid in the form of foreign currency. When your country wants to gift or send some grants to rest of the world, again that has to be in foreign exchange. When your government or you want to invest in rest of the world, okay, when you have to make investment in rest of the world, you have to take help of foreign exchange. That is why you need foreign exchange. Next is speculation trading. What is speculation trading? Speculation trading in Hindi means सट्टेबाजी. ठीक है, प्राइस के अप या डाउन पे शर्त लगाना, फॉरेन एक्सचेंज के रेट के ऊपर उसके बढ़ने या कम होने पे यू आर स्पेकुलेटिंग. सो फॉर दैट रीज़न यू ऑल्सो नीड फॉरेन एक्सचेंज. ओके, एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and rate of exchange. Let's say that demand of foreign exchange rises. Okay, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल. ओके, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू. नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड फ्रॉम वेयर डू यू गेट फॉरेन एक्सचेंज? नंबर वन, एक्सपोर्ट्स. आपकी कंट्री अगर एक्सपोर्ट्स करती है, ठीक है, तो उसको पेमेंट किसकी फॉर्म में मिलेगी? फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर कोई कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है, अगेन क्या लेकर आएगी? फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएगी. ठीक है, रेमिटेंसेस बाय एनआरआई, जो हमारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, अगेन हमें पेमेंट्स करते हैं या यूनिलेटरल पेमेंट्स करते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं, चैरिटी वगैरह करते हैं, तो अगेन रेमिटेंसेस, अगर कोई पैसा भेज रहा है एनआरआई इंडिया के अंदर, दैट इज़ अगेन द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज. एंड देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई. व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज विल राइज, सप्लाई विल राइज. एंड व्हेन rate of and what about demand? When rate of exchange rises, demand will fall. There is inverse relationship between demand and rate of exchange, and there is a direct relationship between rate of exchange and supply. ठीक है, now let me give you reasons for this, why it's inversely related, why it's positively related. Okay, let's say rate of exchange earlier was $1 was for 50 rupees. All right, and now $1 is for 52 rupees. ठीक है, अर्लियर $1 वॉज फॉर 50 रुपीज़. अब डॉलर महंगा हो गया, वही डॉलर जो है वो 52 रुपीज़ का आता है. अब देखो, पहले 50 रुपये देकर $1 आ जाता था, अब 52 रुपीज़ देकर $1 आता है. महंगा हो गया ना डॉलर, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? फॉल करेगी. सो व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज, पहले 50 अब 52, रेट ऑफ एक्सचेंज राइज कर गया, तो डिमांड क्या कर गई भाई? डॉलर की फॉल कर गई. ठीक है, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप है. अब यहाँ देखते हैं वाई दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. लुक, जब रेट ऑफ एक्सचेंज राइज करेगा, लेट्स से पहले $1 50 का था, अब वही $1 52 का हो गया, तो सप्लाई बढ़ेगी. अब तुम्हें पता है जो सप्लाई का बेटा मेजर सोर्स है, लेट्स अज्यूम कुछ फॉरेन टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो इंडिया घूमने के लिए आते हैं,
ठीक है, पहले वो $1 देते थे तो उनको 50 रुपये की शॉपिंग करने को मिलती थी इंडिया के अंदर। ठीक है, वो $1 एक्सचेंज करते थे, 50 रुपये मिल जाते शॉपिंग करने के लिए। अब क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है, ठीक है, $1 के बदले में उनको कितने 52 रुपीज़ मिल रहे हैं। उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना, फॉरेन टूरिस्ट को तो फ़ायदा हो रहा है। अब देखेंगे अगर 50 to 52 हो रहा है रेट, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ता है, अब फॉरेन टूरिस्ट और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना इंडिया के अंदर आने के लिए। इंडिया के अंदर आएंगे, स्पेंड करेंगे, बिकॉज उनकी अपनी करेंसी तो क्या हो गई है, उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, बट जो इंडियन डॉलर है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, दैट इज़ वाई अब रेट ऑफ एक्सचेंज जब राइज़ करेगा, 50 से 52 हो गया, तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, फॉल राइज़ करेगी। ठीक है, दैट्स वाई दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। नाउ हाउ इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड? Demand, as I told you, we'll plot rate of exchange on the x-axis. We will plot foreign currency की demand and supply on we'll plot foreign currency demand and supply on x-axis and rate of exchange on y-axis. ठीक है, we know demand and rate of exchange, they are inversely related, so demand curve will be a downward falling curve, and we know supply and rate of exchange, they are positively related, so supply curve will be a straight line upward sloping. ठीक है, let's say demand and supply intersect at point E, so E is the equilibrium point. At point E, when we extend this to your y axis, OR is the equilibrium rate of exchange. let's say ये रेट कितना है, 50 है। ठीक है, लेट्स से ये रेट कितना है, 50 रुपीज़ है, $1 50 रुपये का। ठीक है, नाउ लेट्स से रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेज टू OR1। मान लेते हैं जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, OR1 पे राइज कर जाएगा। एट दिस पॉइंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यू कैन सी OR1 पे जो सप्लाई है, ये देखो सप्लाई इतनी है। ठीक है, द सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है किससे, डिमांड से। डिमांड सिर्फ इतनी सी है, सप्लाई ज़्यादा है। नाउ सप्लाई बीइंग ग्रेटर देन डिमांड, रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल एंड अगेन बिकम OR। फिर से तुम्हारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फॉल करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, OR पे। अगेन इफ़ रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ OR1, एट दिस पॉइंट डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज़ ग्रेटर, डिमांड इतनी है एंड डिमांड इज़ ग्रेटर दैन योर supply, so the rate of exchange will rise and again become OR. This is how your equilibrium rate of exchange is determined. All right, now moving on to the next topic, it's impact of change in demand and supply on rate of exchange. Now what happens when there's change in demand, when there's change in supply on the rate of exchange? Okay, let's see. Initially DD is the demand curve of your rate of your foreign currency, and SS is your supply curve for foreign exchange. Supply curve is positively related, it's upward sloping curve. Demand curve is negatively related, it's a downward sloping curve. Okay, we have to study impact of change in demand. What does change mean? Change means increase and decrease. ठीक है, as we have done in the chapter theory of demand, right? We have done the same topic in theory of demand. increase और decrease का topic हमने +1 में करा हुआ है। ठीक है, शिफ्ट होती है जहाँ पे कर्व्स, डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है। ठीक है, जो पहला केस हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड मान लेते हैं। ठीक है, E is the point of equilibrium where initial demand and supply curves intersect. Now when there will be increase in demand, your demand curve will extend rightwards, right को shift हो जाएगा, it will become D dash. Now E1 will be your point of equilibrium. Let's say initially E पे intersect करता था, extend करते हैं अगर y axis पे, तो 50 था तुम्हारा रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड राइज करी तो इनिशियल वाला सप्लाई कर्व और न्यू वाला डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पर। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे तो R1 पे ये टच करेगा योर y एक्सिस। लेट्स से 52 राइज करना रेट।
अब देखेंगे जब डिमांड राइज करता है, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जब डिमांड राइज करेगी फॉरेन करेंसी की तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, पहले रेट कितना था 50, पहले $1 कितने का था 50 का था, अब वही $1 कितने का हो गया 52 का, डॉलर महंगा हो गया, मतलब डॉलर एप्रीशिएट हो गया। और क्या डिप्रीशिएट होगा, किसकी वैल्यू कम हो गई, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो गई। पहले वही $1 50 का आ रहा था, अब वही $1 को लेने के लिए मुझे 52 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। डॉलर तो एप्रीशिएट हो गया, महंगा हो गया, बट हमारा रुपये क्या हो गया भाई, डिप्रीशिएट हो गया। ठीक है, अब ऐसे आप लोग कर सकते हो डिमांड के फॉल करने वाला केस, अब डिमांड को बैकवर्ड शिफ्ट करवा के कर देंगे। ठीक है, वहाँ पे ऑपोजिट होगा, वहाँ पे डॉलर डिप्रीशिएट करेगा और रुपये एप्रीशिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास है सप्लाई की चेंज का। देखिए अब हम कर रहे हैं इंक्रीज इन सप्लाई वाला केस। ठीक है, वी आर डूइंग द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। डी इज़ द इनिशियल, डी इज़ द इनिशियल demand curve, SS is the initial supply curve. Demand curve for foreign exchange is inversely related and hence downward sloping. SS is the supply curve of foreign exchange. It's positively related, so it is upward sloping curve. Initially the both of them, they are intersecting at point E. When we extend this point to y axis we get the equilibrium rate of exchange which is 50, OR 50 है, मान लेते हैं 50 है रेट ऑफ एक्सचेंज। अब सप्लाई कर्व जब इंक्रीज़ करेगा, राइट वर्ड को शिफ्ट करेंगे भाई इसको, तो ये हो जाएगा S'। नाउ योर न्यू सप्लाई कर्व एंड योर ओल्ड डिमांड कर्व विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E'। एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस पे तो OR 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो पहले रेट था वो OR था, अब रेट कितना है आपका, OR 1 है। ये रेट क्या हो गया आपका 50 से 42 फॉल कर गया। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, देखेंगे पहले वही $1 50 रुपये का था, अब वही $1 42 रुपीज़ का है। डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर डेप्रीशिएट हो गया और हमारा रुपये क्या हो गया भाई, एप्रीशिएट हो गया। ऐसे आप लोग सप्लाई के डिक्रीज़ होने का पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सप्लाई को डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे डॉलर क्या हो जाएगा, एप्रीशिएट हो जाएगा और रुपये क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।